ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਐਫ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਜੀ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਜੀ ਐਸ ਸਮਾਲ ਜੀ ਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਐਫ ਐਸ ਇੰਟੂ ਜੀ ਐਸ ਇਹ ਇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਟੂ ਟੀ ਐਫ ਆਫ ਜ਼ੈਡ ਜੀ ਆਫ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਡੀ ਜ਼ੈਡ। ਇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਸਟਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਕਨਵੋਲੂਟ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਫ ਕਨਵੋਲੂਟ ਜੀ ਸਿੰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਜੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਇੰਟੂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ ਜੀ ਆਫ ਐਸ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲ ਦੀ ਫੇਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾय ਪਾਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ s ਅਪੋਨ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 36 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਚਲੋ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਇਦਾਂ ਤੋੜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਤੋੜਨਾ, ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ s ਅਪੋਨ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 36, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 ਅਪੋਨ s ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 36, ਇਦਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋੜ ਦਿਆ। ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 36 6 ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, cos 60 ਆ। ਇਹ 1 ਅਪੋਨ 6 ਲੈ ਕੇ 6 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ 1/6 sin 60। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤੋੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ f ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ g ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹ f of s ਮੰਨ ਲਓ, g of s ਮੰਨ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ f of s ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ f of s ਮੰਨਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਸੌਖਾ
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਆਫ ਐਸ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਸ ਅਪੋਨ ਐਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 36 ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਫ ਐਸ। ਫਿਰ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ cos 60 ਤੇ ਜੀ ਆਫ ਟੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਲੈ ਕੇ, वन बाय सिक्स स्केयर आ गया, 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 1/6 sin 60 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਫ ਆਫ ਟੀ ਤੇ ਜੀ ਆਫ ਟੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਰੂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, देयरफॉर बाय ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਫ S upon S square plus 36 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, is equals to ਪਹਿਲਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 to t f of z, ਇਹ 'ਚ z ਭਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ cos 6z ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ t minus z, 1/6 sin 6 ਇੱਥੇ t minus z ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ dz। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ t ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ t ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਥੋਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ GS ਮੰਨਣਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ GS ਮੰਨਣਾ, ਦੋਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਐਫ ਹੈ GS ਮੰਨ ਲਓ। ਸੌਖੇ ਨੂੰ GS ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਮ ਸੌਖੀ ਬਣੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਖੇ ਨੂੰ GS ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪਤਾ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਨ cos ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬਸ ਇਹ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ GS ਮੰਨਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਨੂੰ ਵੀ GS ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FS ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕਰਕੇ FTGT ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕੱਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/12 ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 12 ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। cos ਸਾਈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ AB ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 2 cos 6z sin 6t minus 6z dz, 2 cos A sin B, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ sin, ਪਹਿਲਾਂ a plus b ਕਰਾਂਗੇ 60 ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ a minus b ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਆਊਗਾ 12z minus 60, ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ z ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ t ਹੈ, t ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਲਿਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ z ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, sin 60 ਅੰਦਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ z ਆ ਜਾਏਗੀ 0 to t, ਸਾਈਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ cos ਆ ਗਈ, नीचे डेरिवेटिव आ जाएगा 12, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। मेन अगे इंटीग्रेशन ही है जी,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/12 t sin 60, ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ z ਨੂੰ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ cos 12t minus 60, 60 minus cos 0 ਭਰਿਆ minus 60 नीचे 12, ये तो कट जाएगा जी, cos माइनस एब्जॉर्व कर लेगा, ये कट गया, ये अपना आंसर आ गया t sin 60 बटा 12, ये चीज आ गई। जिमें होर न्यूमेरिकल देखो, जिमें 1/(1) s plus 3s plus 6 का होल स्क्वायर, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਥਿਓਰਮ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਨਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣੀ ਆ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਤੋੜਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ GS ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਵਰਸ ਲੈਪਲੇਸ ਸੌਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵਾਲਾ ਉਹ FS ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ GS ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆंसर आ जाएगा। तो GS जो है ये 1/s plus 3 ले लिया। बस इस तो बाद f of t कटांगे, इनवर्स लैपलेस ऑफ f of s करके, इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s plus 6 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट शिफ्टिंग लावांगे, पहला e दी पावर -60 बाहर आएगा, इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s स्क्वायर, ये आ गया t दी पावर 1/1 फैक्टोरियल, मतलब ये बन गया t e दी पावर -6t। इस तो बाद फिर gt कढ़ लवांगे आपां, इनवर्स लैपलेस ऑफ g of s, इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s plus 3, ये आ गया e दी पावर -3t। फिर लावांगे therefore by convolution theorem, इनवर्स लैपलेस ऑफ s plus 3 into s plus 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 to t इंटीग्रेशन। देखो हुण इहदे सिर्फ कल आपां z भरना, मतलब f of z मतलब z e दी पावर -6z, ए च की भरना आपां ने e दी पावर -3 t - z, g t च भरना आपां ने 3 t - z भरना इंटू डी z। तो देखो ध्यान नाल, जे बाय चांस आपां इनू f मानदे f of t, तां उरे आपां इनू z भरदे, जे इनू g मानदे आपां गलती नाल, उरे g नू की भरांगे आपां t - z e दी पावर -6 t - z। फिर ये चीज़ बन जानी सी, जे आपां उल्टा मनांगे इनू GS मनांगे, इनू FS मनांगे, फर्क कोई नहीं पैदा, इंटीग्रेशन का भी सॉल्व हो जाएगी, पर थोड़ी देखो लग रहा है कि औखी लग रही है देखो, इतने t - z आ, इतने कला z आ, फर्क तो कोई नहीं पैदा, तो ये गलत नहीं है, जिहड़ा मर्जी मान लो कोई फर्क नहीं पैदा है, पर जे सौखे वाला तुसीं सौखे वाला GS मान लो, थोड़ा सौखा हो जाएगा। हुणे किवें करना, आपां टर्म ऐड कर लवांगे, e दी पावर ऐड हो जाणगियां जी, 0 to t z e दी पावर -3t प्लस 3z -6z -3z dz। ये इंटीग्रेशन का पार्ट्स कर देवांगे, सीधा कर दो, ये फर्स्ट फंक्शन है, सैकेंड फंक्शन, पहला फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ
सैकेंड z ਨਾਲ इंटीग्रेशन करनी है माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट दोबारा फिर आपां इंटीग्रेशन करती जिवें आपां फोरियर सीरीज़ दे विच कीती है 0 to t तो t भरता पहला t e दी पावर -60 फिर 0 पर z0 सारा 0 हो गया ये 1/9 काट लो बाहर ब्रैकेट जो टी भरिया आपाने ई दी पावर -60 0 भरिया ई दी पावर -3t जो भी आ गया अपना आंसर है। एलसीएम लेना तां भी ठीक है, जो एलसीएम नहीं लाओगे तां भी ठीक है, ये नीचे -3 होना सी, ये अपना आंसर है। जे तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम स्पैशल लाने वास्ते की है फिर तो आप कॉन्वोल्यूशन ना करांगे, जे नहीं कही हैगी तो मर्जी है ला भी सकते हैं नहीं भी, जिथे सॉल्व ना हुंदा होवे उत्थे तां लाउणी पेगी आपां नूं, जिवें क्वेश्चन करवाउणा हैगा। इहदे विच जिहड़े पिछली एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन छड्डे हैगे ने जी वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नाल प्रूव हो जाणगे जी, मैं तां छड्डे ने क्वेश्चन वो, जिवें पिछली एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाउणा हैगा मैं वो है इनवर्स लैपलेस ऑफ ये है 5s + 30 बटा s² + 12s + 37 दा होल स्केयर। ये दो तरीके करवाने क्वेश्चन के। हुण जिवें इह च होल स्केयर आ गया तो इहनूं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नाल सॉल्व कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन लगानी बड़ी औखी है, ये पढ़ी भी नहीं आपने, तो दो पार्ट्स किवें तोड़ांगे वो ध्यान दो। इनवर्स लैपलेस उस तो पहला इनवर्स लैपलेस जो 5 कॉमन आ गया s + 6 आ गया, नीचे की बनेगा s + 6 का होल स्केयर +1, ये कंप्लीट इसका लगा के बन गया 36 ऐड किया 36 सबट्रैक्ट किया ये बन जाएगी। हुण ये जे s + 6 नूं आपां s च कन्वर्ट कर लिए मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग ला लीए e दी पावर -60 बाहर इनवर्स लैपलेस ऑफ s/s स्केयर +1 का होल स्केयर, ये क्वेश्चन बन गया। हुण इहदे विच आपां इदां इहनूं मल्टीप्लाई दे विच लिख लो s/s² +1 जे पिछे किया 1/s² +1 इदां आ जाएगा। हुण होल स्केयर करके कोई होर फॉर्मूला नहीं लग रहा, एक फॉर्मूला होर हैगा वो वैसे एक बार मैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम नाल क्वेश्चन करवा देवां फिर वो फॉर्मूला दसना है कि फॉर्मूला किवें यूज़ करना, पर मैं वो पहला दस्सिया नहीं हैगा फॉर्मूला वाला जिहड़ा मैं करवाउणा हैगा कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम सब तो वधिया हैगी है, इहदे नाल मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जिहड़ा फॉर्मूला आपां करांगे उहदी डिसएडवांटेज है जो देखांगे फिर लग जू पता। फिर आह आ गया अपने कोल, इहदी आपां भी एक FS GS दोनों सेम ने जिहड़ा मर्जी मान लो, फिर आपां लैट कर लिया कि FS s/s² +1 है, GS मान लिया आपां ने 1/s² +1, देयरफॉर f ऑफ t आ गया इनवर्स लैपलेस cos t, g ऑफ t आ गया sin t, इन नंबर ही 1 पा के छड़ लेना, पहला आ सॉल्व करते हैं। देयरफॉर इनवर्स लैपलेस ऑफ s/s² +1 का होल स्केयर इज इक्वल्स टू 0 to t, पहला cos z भरना फिर sin t - z dz, 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड 1/2, पहला होगा sin t फिर माइनस sin 2t माइनस 2z माइनस t, इसकी इंटीग्रेशन करांगे इस तो बाद तो dz आना सी। पिछे मांगूंगा मैं थोड़ी स्पीड तेज की, पिछे मांगूंगा सारा ये 1/2 साइन दी साइन कॉन्सटेंट ये t साइन t आ जाऊगा जी, ये साइन दी इंटीग्रेशन प्लस कॉस 2z - t/2,
0 to t। इस तो बाद 1/2 t sin t ਇਹ 'ਚ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਫ ਬਾਹਰ cos t माइनस cos माइनस t। ये cos एब्जॉर्ब कर लेगा, ये कट गया तो ये बन गया t sin t/2। ये आ गया। Therefore one becomes, पहला बन गया मतलब इनवर्स लैपलेस ऑफ 5s + 30 अपॉन s स्क्वायर प्लस 12s + 37 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 e दी पावर -60। ये कढ़िया अपने t sin t/2। ये आंसर आ गया। एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला हो रहा है करवाने का, वो करवाना है फॉर्मूला। पर वो हरेक वास्ते एप्लीकेबल ही है। वो क्यों नहीं है हरेक वास्ते एप्लीकेबल? एक बार पहला आप फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला है किमें, फिर करते हैं। वो सीगा अपने कोल जिवें लैपलेस फॉर्मूला किया सी, लैपलेस दे विच अपने कोल फॉर्मूला सीगा जी कि f-t, ये सीगा अपने कोल एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। ये डेरिवेटिव वास्ते फॉर्मूला सीगा। लैपलेस ऑफ इनवर्स लैपलेस च बनावांगे तो थोड़ा औखा लगूगा। इदां करांगे, इदां ये f-t हो गया, इदां तो इदां मैं लिख नहीं रहा हैगा हजे। जिमें इत्थे अगे सॉल्व किया सी, ये बन गया सी 5 e दी पावर -60 इनवर्स लैपलेस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 दा होल स्क्वायर। ये बन गया सी। इहदा इनवर्स लैपलेस कढवा रहे हैं किवें, ये थोड़ा जिहा तां ही मैं पहला दस्सिया नहीं है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऑप्शनल आ जी, कि जिन्ने भी ये फॉर्मूले उपर बेस्ड न्यूमेरिकल ने, ये सारे कॉम्बिनेशन सॉल्व हो जाएंगे। ये थोड़े वास्ते ऑप्शन है जी, तुसीं यूज़ करना कर लो, नहीं तो कॉम्बिनेशन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फॉर्मूले दे। ये फॉर्मूला है किवें आ, जिहड़ा ये फॉर्मूला सी, तुसीं एक अजिहा फंक्शन लभना है, सुनियो ध्यान नाल, एक अजिहा फंक्शन लभना जिहदा डेरीवेटिव ये बन जाए अपने को। एक अजिहा फंक्शन लभना आपां जिहदा डेरीवेटिव ये बन जाए अपने को। ये लोड़ नहीं पैनी फॉर्मूले की, ਆਪਾਂ आही यूज करांगे फॉर्मूला। इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी, टी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ डैश एस इज इक्वल्स टू -t एफ ऑफ टी। आही यूज करांगे फॉर्मूला, ये ठीक है। आपां एक अजिहा, ये फॉर्मूला पहला पढ़िया है आपने, यही यूज करांगे फॉर्मूला। एक अजिहा फंक्शन फाइंड करना आपने जिहदा डेरीवेटिव ए बन जाए। मैं लै रहा, देखो जे आप लैट कर लीए एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 दा होल स्क्वायर, एस प्लस 1 सॉरी, ये ले लीए। डेरीवेटिव करके देखो रफ च कितना आऊगा। इसका डेरीवेटिव आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 दा -1, जो डेरीवेटिव करांगे -1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 नाल 2s आ जाएगा। ये आऊगा -2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 दा होल स्क्वायर। पर -2 नहीं हैगा तो ये अगे इदां पा लिया। इदां क्यों लिया? बिकॉज जे आपां हुण डेरीवेटिव करांगे ये बन जाएगा s अपॉन एस प्लस 1 दा होल स्क्वायर। ये प्रॉब्लम कित्थे आऊगी? ये फॉर्मूले की गल कदों करनी है जो मैं कह रहा है। एक तो किया सी अपने ध्यान चो फॉर्मूला तां लाना है जो अपने को लास्ट लैक्चर किया सी लॉग होवे जां कॉट इनवर्स पिया होवे।
एक होर आ जे नीचे क्वाड्रेटिक का स्केयर होवे, सुनियो ध्यान नाल, क्वाड्रेटिक का स्केयर होवे तां भी ये फॉर्मूला आपां यूज कर सकते हैं। पर जिथे क्वाड्रेटिक का स्केयर होवे उत्थे ये फॉर्मूला यूज करने का फायदा कोई नहीं हैगा, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। तो वधिया गल की है जिथे नीचे क्वाड्रेटिक का स्केयर होवे उत्थे हमेशा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ला लो, ने पिछे किया। ये गल सुन लियो ध्यान नाल। तो फिर आपां की करांगे, वैसे मैं ला के दिखा रहा किवें लाउणा है। जो डेरीवेटिव आ गया हुण दोनों पासे इनवर्स लैपलेस लै लवांगे आपां। Therefore इनवर्स लैपलेस ऑफ एस अपॉन एस स्केयर प्लस 1 दा होल स्केयर एक बराबर आ गया इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ डैश एस। ये मैं पहला पाया बाद चों पाया, दोनों पासे इनवर्स लैपलेस लैणे। ये कितना हो गया माइनस टी एफ ऑफ टी, ये फॉर्मूला हो गया। तो एफ ऑफ टी की हुंदा इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस हुंदा, तो एफ ऑफ एस इनवर्स लैपलेस काढ़ लो कितना होगा माइनस टी इनवर्स लैपलेस ऑफ माइनस 1/2 1/s स्केयर प्लस 1, ये आ गया t/2, तो यदा हुंदा हैगा साइन टी, ये चीज बन गई। नीचे क्वाड्रेटिक का स्केयर होवे तो डेरीवेटिव वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, पर मैं कह रहा कि डेरीवेटिव फॉर्मूला जो नीचे जे क्वाड्रेटिक का स्केयर होवे उत्थे डेरीवेटिव के फॉर्मूले वाले सारे क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन सॉल्व हो जाएंगे। तां ही कॉन्वोल्यूशन ज़्यादा इंपोर्टेंट है, मैं तां ही पहला वो दसी है, ये क्वेश्चन नहीं करवाए पहला। हुण प्रॉब्लम की है, ये डिसएडवांटेज की इस फॉर्मूले की। उरे तां मैं तुहानूं कहा सी कि अजिहा फंक्शन सपोज करना है कि जिहदा डेरीवेटिव करके ये बन जाए, एक अजिहा फंक्शन बने जो डेरीवेटिव सपोज करके आ बन गया। जे ना बनता फिर की करते आप, मान लो इत्थे हुंदा 1 हुंदा, फिर ये जिन्ना मर्जी आप जोर ला लीए एक अजिहा फंक्शन आप नहीं लभ सकते जो डेरीवेटिव आ बन जाए, इत्थे फिर रूल फेल हो जाऊगा जो आ डेरीवेटिव का फॉर्मूला। ये तां ही है कि इदां दे क्वेश्चन सारे कॉन्वोल्यूशन हो जाएंगे। मैं तां ही कहना कॉन्वोल्यूशन ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इतना लोड़ नहीं करन दी, तुसीं कन्फ्यूज ना हो जाओ, जे कर लो चंगी गल। अदरवाइज नीचे जे क्वाड्रेटिक का स्केयर होवे कला टर्म तो वह वाले क्वेश्चन तुसीं कॉन्वोल्यूशन कर लेने ने। मैं तां ही ये नाल दे क्वेश्चन जिथे अपने को लॉग आ गया या कॉट इनवर्स आ गया उत्थे ही फॉर्मूला लाउणा ही लाउणा आपां ने, अदरवाइज जिथे स्केयर आ गया नीचे उत्थे भी लग सकदा, कन्फर्म नहीं हैगा, क्योंकि जे डेरीवेटिव बन गया फिर लग सकता, जे ना बने फिर नहीं लग सकता। पर इदां दे सारे क्वेश्चन कॉन्वोल्यूशन हो जाएंगे सॉल्व। चलो मैं थोड़े कॉन्वोल्यूशन के क्वेश्चन होर करवाने ने। ध्यान रखना जी कॉन्वोल्यूशन का न्यूमेरिकल या थ्योरम इदां ला लो, एक टॉपिक 99% चांस ने कि पेपर च आऊगा। तो जो थोड़े क्वेश्चन पिछे छड्डे हैगे ने एक्सरसाइज विचों वो सारे तुसीं कॉन्वोल्यूशन ट्राई कर लियो क्वेश्चन जी। हुण थोड़े सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। वो एक क्वेश्चन मैं होर करवाना है कॉन्वोल्यूशन नाल, फिर तां जो तुहानूं कंसैप्ट होर समझ आ जाए। वो क्वेश्चन कर रहे हैं जी मैं, इनवर्स लैपलेस ऑफ 1/s स्केयर प्लस 9 दा होल स्केयर। जिथे क्वाड्रेटिक का स्केयर आ गया ना, क्वाड्रेटिक का स्केयर आ गया उत्थे हमेशा कॉन्वोल्यूशन ही सोचनी है पहला आपां ने। हुण ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। किवें हुण ये दो हिस्से किवें करिए आपां कि दोनों की इनवर्स लैपलेस पता हो, ये गल है विच मेन। दो हिस्से किवें करिए आपां कि दोनों की इनवर्स लैपलेस पता हो, जां तां आपां इदां तोड़ीए, ये 3 हिस्से बन रहे हैं इदां इदां करके इदां करके, ये 3 हिस्से बन रहे हैं। यदि 1 होंदी है ये 1/3 sin t3 sin 3t, ये 1/3 sin 3t। तीन वास्ते नहीं होंदी कॉन्वोल्यूशन, 2 वास्ते होंदी। इन्हूं किवें तोड़ीए, जे आपां इदां ही इकट्ठा करते हैं इनू तां भी प्रॉब्लम है जी, फिर ये किवें सॉल्व करांगे।
तो ये गल हैगी आ, इनू किवें सॉल्व करना आपां ने। तो इदां कर लवो फिर ये, क्योंकि ये मैंशन नहीं किया इस कि आपां स्टेटमेंट असीं कहा तो होया कि कॉम्बिनेशन लाउणी आपां वो लावांगे। चलो तो यदा इनवर्स लैपलेस पहलां कट लैने अलग, जिवें पार्शियल फ्रैक्शन लाने हुंदे आपां उवें इहदा इनवर्स लैपलेस पता आपां नूं। तो लैट कर रहा पहलां मैं, जिहड़ा सौखा हैगा उहनूं जी मान रहे हैं जी, तो यदा इनवर्स लैपलेस निकल जाऊगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं आप। इनवर्स लैपलेस ऑफ एफ ऑफ एस, इनू एफ ऑफ टी हो गया, ये आ गया 1 अपॉन इनवर्स लैपलेस 1 अपॉन एस, एस स्केयर प्लस 9। हुण देखो जी मैं गल दसनी है होर कि पार्शियल फ्रैक्शन इदा नहीं कि आप ए अपॉन बी अपॉन करना होंगे, सीधा भी कई बार ला सकते होंगे आप। सीधा किवें वो देखो, जे गल समझ आ रही हो, ये एलसीएम लो की बचेगा ऊपर। ये जरूरी नहीं होंदा कि आपने ए बी सी करके सॉल्व करना, कई बार कई क्वेश्चन डायरैक्ट पार्शियल भी लग सकती हैगी, सीधा भी कर सकते हो ऑलरेडी। ये उपर कितना बनेगा, एस स्केयर प्लस 9 माइनस एस स्केयर, कितना बच गया 9 बच गया, उपर 1 9 किवें कैंसल होगा, मुरे 1/9 पा लो। देखो गल समझ आ रही हो, ਇਹਦਾ एलसीएम लवांगे ਆਪਾਂ, उपर आऊगा 9 अपॉन एस, एस स्केयर प्लस 9, 9 ना 9 कैंसल हो गया, दोनों इक्वल आ गए, हुण इक्वल पा सकते हैं। सीधा इदा भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। हुण दोनों ही बस लैपलेस निकल जाएगा 1/9, ਇਹਦਾ 1 आ गया, यह cos 3t, दोनों आ गए। ਇਹਦਾ कर लेने आप, एंड g ऑफ t की है इनवर्स लैपलेस ऑफ g ऑफ s, ये कितना बनेगा 1/3 sin t, दोनों निकल गए जी। हुण मतलब कि जे दो पार्ट्स ना बनते होण तां सौखा पार्ट एक पासे इकट्ठा कर लो, जे सौखा पार्ट्स एक पासे इकट्ठा कर लिया, ਇਹਦਾ इनवर्स लैपलेस पहलां कट के दिखा दो अलग। हुण दोनों इनवर्स लैपलेस निकल गए, हुण आपां कॉन्वोल्यूशन लावांगे, देयरफॉर बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ये आ जाएगा 0 to t, पहला ये z भरना आपने 1/9 1 माइनस cos 3z, ये भरना आपने 1/3 sin t माइनस z dz। बाकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है जी, वो देख लो 1/27 आ गया पहला, 0 to t, ये कला कला मल्टीप्लाई कर लिया, साइन 3t माइनस 3z माइनस cos 3z साइन 3t माइनस 3z, ये dz आ गया। मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा, ये 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, ये सीधी इंटीग्रेशन कर लो 1/27 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस आ गई, माइनस कॉस 3t माइनस 3z 3t माइनस 3z बटा माइनस 3, लिमटा भर लो 0 to t, ये नाल दे नाल मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 1/54 2 cos a sin b, sin a प्लस b sin a प्लस b sin 3t माइनस sin a माइनस b, a माइनस b किया आपने 6z माइनस 3t dz, ये मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस कर लो 1/81, ये टी भरया पहला, ये टी भरया, टी टी कैंसल, 3t कैंसल, cos 0 1 हो गया, माइनस 0 भरया z नू cos 3t, ये आ गया।
-1/54 ਇਹਦੀ कॉन्स्टेंट आ, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन z बन जाएगी, z की लिमिट भरती t आ जाएगा t sin 3t माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगी प्लस कॉस 6z माइनस 3t अपॉन 6 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिमिटा भर लवांगे 0 to t। मैं ध्यान नाल इंटीग्रेशन करनी है इस तो बाद जी। ये आ गया 1/81 1 माइनस कॉस 3t माइनस 1/54 t साइन 3t इच टी भरिया अपने कॉस 3t आ गया माइनस 0 भरिया कॉस माइनस 3t आ गया, कॉस माइनस एब्जॉर्ब कर लेगा जी, यह टर्म कैंसिल होगी तो ओवरऑल आंसर बन गया अपने को 1/81 1 माइनस कॉस 3t माइनस t साइन 3t अपॉन 54। ये एलसीएम भी लै सकते हैं आप, इसका एलसीएम आ जाएगा जी 81 ते 54 का, पहला 27 ते गया 6 7 42 12 4 162 इतने 2 आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस 3t इतने 3 आ जाएगा माइनस 3t साइन 3t। चलो जो भी आ गया अपना आंसर मेन ये है कि आप इनू सॉल्व किमें करना है वो मेन है जी। चलो ये कॉम्प्लेक्स थ्रू के क्वेश्चन सीगे जी, ये ट्राई कर लियो तो नैक्सट लैक्चर में आप कॉम्प्लेक्स का प्रूफ करांगे जी। जो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो जी। थैंक यू।